Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342 and 2331 0464. For callers calling from outside Delhi, please do not forget to put the prefix of 011. I am Vaibhav Jyotsna Srivastava, and with me is my co-anchor Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे व्यापारिक, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23314444 और 23421050 और हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन श्रोताओं, याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज को धीमी रखें। आर्थिक जगत से जुड़े आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक राजीव रंजन। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। We begin with the headlines. India praises the progress made in the Alaska summit between US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin, says the world is looking for an early end of Ukraine conflict. India and South Korea exploring new opportunities in AI, semiconductors and clean energy, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. And in the US markets, Dow ends higher while S&P 500 and Nasdaq decline. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुए शिखर सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की भारत ने प्रशंसा की। भारत ने कहा कि विश्व को इस संघर्ष के जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया में एआई, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर बातचीत हुई है और अमेरिकी बाजारों में डाउ में तेजी दिखाई दी, जबकि S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट दर्ज की गई। Beginning with the headline stories, India today welcomed the summit between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin in Alaska, calling their leadership in the pursuit of peace highly commendable. In a statement, India's Ministry of External Affairs praised the progress made in the talks and reiterated that dialogue and diplomacy remain the only path forward. The ministry added that the world is looking for an early end to the conflict in Ukraine. US President Donald Trump suggested today that Ukraine consider a deal with Russia to end the war, citing Russia's considerable power. His comments followed a nearly 3-hour meeting with President Vladimir Putin in Alaska on Friday, the first US-Russia summit since Russia's invasion of Ukraine in February 2022. Trump also indicated that both leaders agreed direct peace negotiations rather than a ceasefire were the best path forward,
signaling a shift from Ukraine and its allies' prior position. Putin expressed hope that the discussions would bring them closer to peace in Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated he would meet Trump in Washington on Monday and that Trump had briefed him on the summit's key outcomes during a phone call as the U.S. president returned from Alaska. The White House confirmed Trump also spoke with NATO leaders after his call with Zelensky. Meanwhile, European leaders, including French President Macron, German Chancellor Merz, UK Prime Minister Starmer and Italian Prime Minister Meloni had a discussion with Zelensky to review the information shared by Trump. Polish Prime Minister Tusk said they jointly prepared a statement based on the debrief. और इस बीच हमारे साथ प्रयागराज से हमारे श्रोता अजय जुड़ चुके हैं। अजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं अजय बोल रहा हूँ सर। जी जी, सवाल पूछिए अजय जी। हाँ सर, हमारा म्यूचुअल फंड से एक सवाल था सर। जी, IDCW मैंने ले रखी थी सुंदरम म्यूचुअल फंड की सर। अजय जी, आप म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के लिए रविवार को सवाल पूछें। अगर किसी और विषय पर बात करना चाहते हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। And we're joined in by our next caller from Faridabad. We have Mr. Prem. Welcome to the show, sir. Please ask your question. हेलो प्रेम जी, आपकी आवाज आ रही है, कृपया अपना सवाल पूछें। सभी को नमस्कार जी, और अपनी रेडियो सेट को कृपया आप बंद कर दें या उसकी आवाज धीमी कर दें, आपसे अनुरोध है। हमारी लगभग कुछ एफडी मैच्योर होने वाली है लगभग 20 अगस्त तक, तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें से इस बार कुछ शेयर मार्केट में भी लगाया जाए और कुछ गोल्ड खरीदा जाए बिस्किट के तौर पे, और कुछ पैसा एफडी में ही रखा जाए। क्या बैंक में रखना ठीक है या पोस्ट ऑफिस में बेनिफिट है? जी राजेश जी। सर जी, देखिए, अब जैसे इनकी बात समझ में आ रही है, एक तो ये एफडी का पैसा मैच्योर हो रहा है, उसको वे सोच रहे हैं कि कहाँ लगाया जाए। ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जो बाकी पैसे हैं या जो आपकी बाकी वेल्थ का हिस्सा है वो कहाँ है। ये ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन का मसला है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में, जिसको सीधे भाषा में कहें कि शेयर बाजार, बैंक में जैसा आपका एफडी है, गोल्ड है, आपके पास जमीन जायदाद कितनी है, ये सब चीजें देख समझ करके हिस्सा तय करना होता है। ऐसा लगता है कि आपने अभी तक शेयर बाजार में कोई भी पैसा नहीं लगाया है, तो आपकी उम्र नहीं पता, लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 40-50 के बीच में है तो थोड़ा बहुत आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही रिटायरमेंट की कगार पे या उससे आगे नहीं निकल गए हैं तो शेयर बाजार में कुछ पैसा तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। और उसके लिए मेरी सलाह होगी कि आप पहले इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए। सीधे किसी शेयर में पैसा लगाने के बदले आप किसी म्यूचुअल फंड का इंडेक्स फंड लीजिए, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड होता है या सेंसेक्स इंडेक्स फंड होता है। वहां से आप थोड़ा पैसा शेयर बाजार में लगाएंगे। असल में जब आप इंडेक्स फंड में लगाएंगे, होने को वो म्यूचुअल फंड है, लेकिन वो पैसा अंततः आपका शेयर बाजार में लगता है। शेयर बाजार में जिस तरह से रिटर्न मिलता है वैसा ही रिटर्न आपको इससे मिलेगा। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली आप इक्विटी में हिस्सेदारी कर पाएंगे। उसमें जो फायदा होता है उसका आपको आपके ओवरऑल उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपके ओवरऑल एसेट में उस तरह से वृद्धि होगी। बाकी रहा गोल्ड का मसला, तो वो आप पहले देखिए कि आपके पास पहले से कितना सोना है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां कुछ न कुछ सोना पहले से होता है, नहीं हो बिल्कुल ही भी, तो सबके पास कुछ न कुछ होता है। तो आप पहले ये देखिए कि आपके अपने पूरे नेटवर्थ में गोल्ड का हिस्सा कितना है। अगर कम है तो आप थोड़ा हिस्सा जरूर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अभी भाव काफी बढ़े हुए हैं और कोई पक्का वादा नहीं कर सकता कि ये 1 लाख का सोना जो है वो कल को 90,000 नहीं हो जाएगा, 85,000 नहीं हो जाएगा। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए आप सोना चाहें तो कुछ ले सकते हैं। और दिल्ली से हमारे श्रोता पंकज लाइन पे है। पंकज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे ये ओवरनाइट फंड के विषय में जानना है और इस पे कितना इंटरेस्ट होता है और इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थोड़ा इसके विषय में डिटेल में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। थैंक यू। जी पंकज जी, ओवरनाइट फंड का मतलब ये होता है कि ऐसे फंड जो ओवरनाइट यानी मतलब मुश्किल से 1 दिन का पैसा कहीं पे लगाते हैं, वो फंड, मतलब वो आपके बिहाफ पे, जरूरी नहीं कि आप उस फंड में 1 दिन का पैसा लगाएंगे, लेकिन आपके बिहाफ पे आपने जो पैसा उनको दिया उस पैसे का इस्तेमाल वो 1 दिन के पेपर में, पेपर का मतलब
आप समझ लीजिए कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, कर्ज का ही पैसा है लेकिन सुरक्षित है, उसमें वो पैसा लगाया जाता है और फिर चूंकि वो एक दिन का होता है तो बहुत सुरक्षित होता है, एक दिन में कोई भागने वाला नहीं होता है और उसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपको ये समझ लीजिए कि आपके सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बहुत आप बड़ी उम्मीद मत रखिए उसमें। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। Welcome back. This is the Market Mantra show on Akash Vani, and we are joined in by our next caller now, Atanu Saha from Kolkata. Welcome to the show. Please ask your question, Atanu. Good evening to everybody, and also good evening our Rajiv Ranjan ji present. Sir, my question is how GST tax regime increase consumer purchasing power, sir? Then my second question, sir, matter of logistics and warehousing infrastructure. How do you increase our private-public participation in this logistic and warehousing infrastructure system? And tell us something about private-public participation. How do you increase the interest about to do something for our country? Thank you very much, sir. जी तनु जी, पहले तो जीएसटी जहां तक मसला है, जीएसटी जब व्यवस्था शुरू हुई वो अपने आप में भारत की जो टैक्स प्रणाली है उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। इससे पहले क्या होता था कि बहुत तरह के टैक्स लगते थे और वो टैक्स एक बार जो लग गया वो फिर आगे कॉस्ट को बढ़ाते चलता था। जो टैक्स एक बार लगा उसका कोई आगे इनपुट का बेनिफिट अगले स्टेज पर नहीं मिलता था और इसके चलते इसका बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट होता था कि मान लीजिए कि 100 रुपए की चीज़ है, उस पर कहीं कोई टैक्स ए लग गया, वो 10 रुपए का लग गया, अब उस चीज़ की कॉस्ट हो गई 110 रुपए। अब अगला जो टैक्स किसी भी चीज़ पे मतलब उस चीज़ पे किसी दूसरे तरह का टैक्स लगा, वो मान लीजिए और फिर आगे 8% लग गया, तो अब वो 110 पे पूरा 8% लगेगा, ना कि 100 पे 8% लगेगा। ये एक सरल तरीके से आपको समझाने के लिए बताया। तो जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई तो उसमें हर अगले चरण पे, अगले स्टेज पे जो है वो टैक्सेशन जो है वो जो अगले स्टेज की पार्टी है उसको इनपुट क्रेडिट मिलता रहता है। तो इसके चलते अंत में एक कंज्यूमर मान लीजिए किसी चीज़ पर 18% टैक्स दे रहा है या 12% टैक्स दे रहा है या 5% टैक्स दे रहा है, तो वही उस चीज़ पे मतलब अगर उस चीज़ की ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपये थी तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते भी वो जो उस पर एक्चुअल जीएसटी टैक्स है उतना ही एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है। तो इसके चलते वास्तव में भले ही देखने में ये लगता हो कि जब जीएसटी लाया गया तो जीएसटी पहले के किसी दूसरे टैक्स के मुकाबले ज़्यादा देखने में लगता होगा, लेकिन वास्तव में उसका इम्पैक्ट ये था कि चीज़ें सस्ती हुई। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, वो अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। जीएसटी आज की तारीख में एक प्रणाली के तौर पर स्थिर हो गई है। सरकार को अब ये लग रहा है कि अब इसका आगे तार्किकीकरण, रैशनलाइजेशन किया जा सकता है और इसीलिए जो आज की तारीख में 4 मुख्य दरें हैं उनको घटा करके 2 मुख्य दरों के तौर पर लाया जाएगा। तो अब 5 और उसके बाद 18 कयास हैं, या कह लीजिए कि अभी ये प्रस्ताव आगे जाएगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगा, जीएसटी परिषद के पास जाएगा। अंततः जो कुछ सामने आएगा हो सकता है अगले कुछ महीनों में आपके लिए खुशखबरी मिले, जैसा कि प्रधानमंत्री संकेत दे चुके हैं। जी, और ग्रेटर नोएडा से हमारे चिर परिचित श्रोता एसपीएस जैन जी मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, अभी 2 खुशखबरी हैं। एक तो जीएसटी कम होने वाली है, शायद कम ही होगी दिवाली पर, और दूसरी खुशखबरी कल जो पुतिन और उनके मीटिंग से ये निकला कि अभी जो एक्स्ट्रा टैरिफ 25% का लगने वाला था वो अभी नहीं लगेगा, शायद डेफर हो गया या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इससे मार्केट पर सोमवार को जो मार्केट खुलेगा उसका क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी जैन साहब, देखिए बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया जो भी होगी वो तो काफी उत्साहित होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस उत्साह के बाद बाजार वापस अपने फंडामेंटल्स पे जाएगा, वापस ये देखेगा कि हमारी कंपनियां कितना कमा रही हैं, आगे की उम्मीदें क्या हैं। तो वापस एक तरह से कहा जाए कि जो कंपनियों की अर्निंग्स है, हमेशा हम कहते हैं बाजार जो है या शेयरों की कीमतें जो हैं वो अर्निंग्स का गुलाम होती हैं, यानी कंपनी जितना मुनाफा बनाती है, अर्निंग्स का मतलब मुनाफा सीधे सीधे कह लीजिए। तो शुरुआती उत्साह ज़रूर बनेगा, उसके आगे हमें देखना पड़ेगा, बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी आते हैं, कहीं पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पर जाकर के रुकता है मामला,
बाजार शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार था, ये पहले से समझा जा रहा था। और उसके बाद ये दोनों ही खबरें जो आपने गिनाई, जीएसटी के बारे में खुशखबरी, वहां शायद लगाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है तो ये खुशखबरी आपको मिलेगी। और पुतिन का मामला या टैरिफ का मामला या ट्रंप साहब का मामला, उसके बारे में इतनी निश्चितता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहां बहुत सारे अगर मगर आगे भी लगे रहेंगे। तो बाजार इन दोनों चीजों पर शुरुआती प्रतिक्रिया जरूर उत्साह भरी देगा, उसके आगे हमें देखना पड़ेगा। और बेंगलुरु से हमारे श्रोता नदीम लाइन पे हैं। नदीम नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को। पोस्ट रिटायरमेंट मैंने थोड़ा बहुत पैसा एसआईपी में लगाया है और थोड़ा पैसा मार्केट में भी लगाया है मैंने। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वेदर एसडब्ल्यूपी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मंथली रिटर्न। एसडब्ल्यूपी जी बिल्कुल नदीम जी, आप चूंकि रिटायर हो चुके हैं और आपने एसआईपी के जरिए पैसा लगाया हुआ है, तो फिलहाल मैं ये नहीं समझ पा रहा कि यदि आप रिटायर हो चुके हैं तो क्या आप पेंशन की राशि से एसआईपी कर रहे हैं। लेकिन आपने जो भी एक्यूमुलेटेड पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिला होगा और आगे भी अगर आप पेंशन से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एसआईपी के जरिए, ठीक है, लेकिन ज़रूरतें होती हैं तो आप एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसके जरिए अगर अपने हर महीने की खर्च निकालने के लिए एक रणनीति बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप इस तरीके पर ज़रूर काम कर सकते हैं। And we are joined in by our next caller, Yogesh from Delhi. Welcome to the show, Yogesh. Please ask your नमस्कार आप question. सभी को 15 अगस्त की और जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे दो सवाल हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि निवेश के लिए अगर इंडिया से बाहर किसी को निवेश करना हो तो अमेरिका का नाम ही ज्यादातर नैस्डैक का सामने आता है। तो लेकिन रशिया भी इक्वली स्ट्रॉन्ग और डेवलप कंट्री मानी जाती है, तो उसका शेयर मार्केट कभी भी हाईलाइट में है, उसकी करेंसी कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी नहीं गई कि उसको निवेश के लिए गुड इनफ माना जाए। इसका क्या रीजन है? और दूसरा सवाल ये है कि अभी ये जो टैरिफ का जो विवाद चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ अभी थमने के आसार हैं या फिर ये मार्केट को और क्रैश करवा सकता है? जी देखिए योगेश जी, आपके दोनों सवाल लगभग संबंधित हैं। आपने रूस का जिक्र किया, बाहर अमेरिका के अलावा निवेश के लिए आपकी नज़र सीधे रूस पर गई, लेकिन वास्तव में शेयर बाजार के लोग जब अमेरिका के बाहर कहीं दूसरे देशों के बारे में सोचते हैं तो उनके पास बहुत सारे दूसरे विकल्प रहते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंडों ने भी इस तरह के अपने प्लान्स निकाले हैं, अपनी स्कीम्स निकाली हैं जिसमें विदेशी शेयरों में पैसा लगाया जाता है। आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, उनके बारे में और पता कीजिए। रूस आज की तारीख में ये बात ठीक है कि अपने आप में एक महाशक्ति है, लेकिन एक शेयर बाजार निवेशक के नज़रिए से देखेंगे तो कोई भी निवेशक ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहेगा जहां पर काफ़ी अनिश्चितताएं हैं। वहां की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में इतनी मजबूत नहीं है। कोई भी युद्ध में लगा हुआ देश जो है उसके साथ आर्थिक परेशानियां ज़रूर रहती हैं। तो एक निवेश के ठिकाने के रूप में रूस आपके लिए कोई आज की तारीख में आदर्श विकल्प नहीं होगा। और टैरिफ के बारे में क्या ही कहा जाए, जब कुछ अंत में फैसला होगा। हालांकि ट्रंप ने भी कहा है उन्हें शांति चाहिए, पुतिन ने भी कहा है कि उन्हें शांति की तरफ बढ़ना है, सब कोई चाहता है। भारत की भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से यही आई है कि हाँ, अगर दोनों ये शांति वार्ता आगे बढ़ती है तो इसमें हमें खुशी होगी। सारी दुनिया चाहेगी शांति बने, लेकिन कब बनेगी, कैसे बनेगी, आज की तारीख में कोई पक्के तौर पे कह नहीं सकता। Market Mantra will continue, but after a short commercial break. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। गाजियाबाद से हमारे श्रोता जेके जैन लाइन पर मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मार्केट मंत्र टीम और आपके गेस्ट के लिए मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि इंडिया की जीडीपी नॉर्मली 12% से बढ़ती है, मतलब रियल जीडीपी और प्लस इन्फ्लेशन। तो जो इंडिया के प्रोजेक्शंस हैं बाय 2050 वो $25 ट्रिलियन टू $30 ट्रिलियन दिए हुए। ये 8% से इन्होंने लिया हुआ है रेट। तो ये जीडीपी रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी रहेगी? जी देखिए जैन साहब, जो नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा आप बता रहे हैं आज की तारीख में, अब वो 12% उतना व्यवहारिक नहीं रह गया है, क्योंकि आप इसको अब 10% के आसपास मान के चलिए आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि
6% के आसपास, 6 से 6.5% तक इस समय हमारी रियल जीडीपी चल रही है। इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी इस समय कम हो चुका है, यदि आपको जानकारी हो, ताज़ा आंकड़े जो हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मासिक आंकड़े हैं। यदि आप सालाना आधार पर देखेंगे तो अभी भी औसतन 4% के आसपास की जीडीपी, कभी ऊपर कभी नीचे ये चल रहा है मामला। तो आप नॉमिनल जीडीपी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 10% के आसपास चलेगा। तो आगे चल करके क्या हम 10% पर ही बढ़ेंगे या 12% की तरफ वापस लौटेंगे या 8% की तरफ चले जाएंगे? कई बार ये होता है कि आप अगर कंजर्वेटिव तरीके से आकलन कीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से डिलीवर कीजिए, उससे कहीं ज़्यादा ही डिलीवर कर दीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो शायद ये सोच हो। अब आगे हमें देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से भारत सरकार की महत्वाकांक्षाएं अच्छी हैं और सभी देशवासी उस महत्वाकांक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सब अच्छा करेंगे, इसका भरोसा रखिए। और अभी हमारे साथ जयपुर से जितेंद्र और दिल्ली से राजेंद्र मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। हम लेते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण स्टोरी। 6 हफ्तों की गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों ने इस हफ्ते उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच लगभग 1% की बढ़त दर्ज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस हफ्ते 740 अंक यानी 0.9% बढ़कर कल 80,598 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 268 अंक यानी 1.1% बढ़कर 24,631 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% बढ़ा। और विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 हफ्तों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। कल डॉलर के मुकाबले रुपया इस हफ्ते 10 पैसे बढ़कर 87 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ। और जयपुर से जितेंद्र जी मौजूद हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार। अच्छा सर, जैसे टैरिफ लगा हुआ है तो अगर मान लीजिए एक सवाल, जैसे कि मान लीजिए भारत भी टैरिफ लगाता है तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो आईजीएसटी लगाते हैं, तो कोई नया रूल्स फिर लाना पड़ेगा कि भारत अगर टैरिफ लगाता है कोई लॉ में चेंज करना पड़ेगा या आईजीएसटी का ही अमाउंट बढ़ जाएगा? जी देखिए, ये तो हर सरकार का प्रेरोगेटिव होता है, चाहे वो अमेरिकी सरकार हो या भारत सरकार हो, कि हमारे देश में कोई भी सामान आएगा तो हम उस पर कितना टैक्स लगाएंगे। एक WTO की व्यवस्था बनी जिसमें सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया और सबने आपसी सहमति बनाई कि हम कोई भी टैक्स लगाएंगे, कोई भी जो सीमा शुल्क लगाएंगे वो सबके लिए लगभग एक जैसा रखेंगे। लेकिन अब वो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है वापस। अब हम वापस बायलैटरल ट्रीटीज वाले दौर में लौट आए हैं। WTO आज की तारीख में बहुत ही अप्रासंगिक जैसा हो गया है, तो हम वापस बायलैटरल ट्रीटीज, इसी के चलते हम कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि टैरिफ लगाने के लिए क्या भारत सरकार को कुछ नया कानूनी इंतजाम करना पड़ेगा? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार सक्षम है। हाँ, जब भी आप कोई नया टैक्स लगाते हैं तो वहाँ पर आपको वापस संसद में जाकर के मंजूरी लेनी होती है, तो वो सारी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन उसके लिए कोई नया कानून फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। And we're joined in by Rajendra Ji from Delhi. Please ask your question. Welcome to the show, sir. राजेंद्र जी, अपने रेडियो सेट की जो ध्वनि है, वॉल्यूम है, उसको प्लीज कम कर दीजिए, उससे थोड़ा सा दूर आ जाएं, फिर अपना सवाल पूछें प्लीज। देखिए, सीनियर सिटीजन हूँ मैं। जी सर। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खोलता है जिसपे 8.2% के करीब इंटरेस्ट मिलता है। वो अब 10-10 लाख का मैंने 2 बैंक्स में खोल लिया, बैंक ने भी मना नहीं किया। अब मुझे पता लगता है कि टोटल 15 लाख ही हो सकता है एक इंडिविजुअल का। तो क्या ये टोटल मिला के अलग अलग बैंक्स में 15 लाख हो सकता है क्या? और नहीं तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? जी देखिए राजेंद्र जी, बात तो सही है कि 15 लाख की सीमा है, और जिस दूसरे बैंक ने ये आपका खाता खोल दिया, जिसने पहली बार खोला 10 लाख का, उसने तो कोई गलती नहीं की। दूसरे बैंक की ओर से जरूर गलती हो गई और आपको भी पहले से ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब नहीं रखा गया। तो फिर आप एक बार दूसरे बैंक के पास जाकर के संपर्क कीजिए, शायद वो कुछ रास्ता निकाल पाए। और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते मार्केट बतौर टीम। सर बताइए, अगर ये इन्फ्लेशन कम है और कंजम्पशन कम है, डिक्लाइनिंग सेल्स है या है, इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स कैसे जाएंगे ये इस फाइनेंशियल ईयर के,
for market, considering this all fuel cost may go up क्योंकि हमारी import cost बढ़ सकती है अगर हम रूस से नहीं खरीदेंगे तो हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट ये सब बता के हमारा दो सेक्टर अगला साल 6 महीने कैसे जाएगा जी स्टॉक मार्केट के लिए? बिल्कुल, अगले 6 महीने अनिश्चित हैं क्योंकि बहुत सारी टैरिफ को लेकर के दुनिया भर में अनिश्चितता है, बाजार भी उस अनिश्चितता वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है और इसीलिए अटका हुआ है। आपकी जो चिंता है वो वाजिब है और बाजार में भी वो चिंता पहले से प्राइस्ड इन है। जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों के बीच व्यापार, विनिर्माण, समुद्री सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने वाले द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। Moving over to our next headline story, in the U.S. markets, the blue chip Dow Jones ended higher after hitting an intraday record high, but other Wall Street indices slipped as mixed data clouded the Federal Reserve's next monetary policy move. The Dow Jones Industrial Average added 35 points to close at 44,946, but the S&P 500 lost 19 points or 0.3% to 6,450, and the Nasdaq Composite lost 688 points or 0.4% to 21,623. For the week, S&P 500 gained 0.9%, the Nasdaq rose 0.8%, while the Dow climbed 1.7%. This was the second straight week when the markets rose on expectations that the Fed could restart its monetary policy easing cycle with a 25 basis point interest rate cut in September. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। राजीव जी इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Before we close, a reminder of the headlines. India praises the progress made in the Alaska summit between US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin, says the world is looking for an early end of the Ukraine conflict. India and South Korea exploring new opportunities in AI, semiconductors and clean energy, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. And the US markets Dow ends higher while S&P 500 and Nasdaq decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar. Namaskar. Market Mantra.